Hello. Today I'm going to show you how to make undiyu. This recipe doesn't need any kind of description. This is Gujarat's specialty, specially made during Uttarayan. A medley of vegetables, winter vegetables. It is very delicious and easy to make. But today I'm going to make it using frozen vegetables. This is Saris brand Surti Undiyu mix packet. This is a packet of frozen vegetables, and it has almost all the ingredients, all the vegetables, whatever we need for undiyu. And because because of the pandemic and because of lockdown, it is very difficult to find fresh vegetables here in UK and Europe. And this video is especially for those who wants to eat undiyu but can't find fresh vegetables. So I've made a video particularly for them so that you can relish it this Uttarayan. You don't have to miss it. Make it with this frozen packet, which is very easily available. So let's check what all things are there. As I said, it is frozen right now, so we need to defrost it. It will take around like 40 minutes, 30 to 40 minutes to come back to the normal room temperature. And I'll take it on a plate so that you can see. It has basically everything, whatever you need. Like it has tur beans, surti papdi, yam, diced potatoes, diced sweet potatoes, brinjals, methi motia. It has val as well and fresh tur as well. Everything is there except raw banana. So you can add it separately. But what I'm going to do is I am going to add stuffed brinjals, potatoes and stuffed bananas separately. So I'm going to discard the frozen brinjal but I'm going to use everything. This is surti papdi and you can see the beans. Once it gets defrost, you can see it clearly. This is sweet potato. It has purple yam as well, and it has tur beans as well. It has methi mutia, which is fried, and you just can add it directly to the undiyu. But I'm going to discard the brinjal. As I said, I'm going to add fresh brinjal and I'm going to leave the diced potato. So without any further ado, let's start with the recipe. This is hara dhania, hari mirch and adrak. I'm going to make a fine paste of it. See, the paste is ready. You need to add generous amount of green chilies as we are not going to add red chili to the masala. Here I have 1.5 cups of grated coconut, fresh grated coconut. You need to use fresh coconut, not the desiccated or the dried ones. And to this I'm adding the paste of green chili, hara dhania and adrak. Okay, and we'll mix it together. तो जितना भी तीखापन है वो सिर्फ ग्रीन चिली से ही आएगा, तो आप अपने हिसाब से इसे बैलेंस करके डाल सकते हैं. To this I'm adding hara garlic, hara लहसुन. If you can't find a green लहसुन or green garlic, you can use the frozen ones as well. अगर वो भी नहीं मिलता है तो take a fresh clove of garlic, grate it, and to this add chopped garlic chives. जो बाहर रहते हैं उनके लिए है ये particularly. Now I am going to add salt. Let's season it with some masalas. This is dhania jeera powder. If you don't have dhania jeera powder, just add dhania powder and jeera powder separately. And to this I'm adding homemade garam masala, half a teaspoon. So 1.5 teaspoon of dhania jeera powder and half teaspoon of garam masala. Whatever you have, you can use even store-bought garam masala as well. And give it a nice mix. Undiyu is basically very simple preparation, but with lots and lots of winter vegetables. And it is low on masalas and high on flavor, as I can say that. इसमें बहुत ही मतलब बेसिक मसाले यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि हमने अभी इसमें नेक्स्ट हींग भी डाल देना है, धनिया जीरा पाउडर डाला है, it has fresh garlic, it has fresh coriander, chili, adrak, and it is sufficient, you know. और जो वेजिटेबल्स है उसका स्वाद को, उनके स्वाद को ये मसाला कभी भी किल नहीं करेगा, वो इनफैक्ट इन्हांस करेगा. तो आपको वेजिटेबल्स का भी टेस्ट आएगा और मसाले का भी टेस्ट आएगा. तो एक बहुत ही यूनिक प्रिपरेशन है ये, मुझे बहुत पसंद है. एंड टू दिस आई एम एडिंग हींग, क्योंकि ये एक हैवी वेजिटेबल है, क्योंकि इसमें बहुत सारा ऑयल जाता है, ऑयल में ही पकाया जाता है undiyu. Undiyu is made in oil. You don't have to add water in it while cooking, so you can imagine amount of oil going in undiyu. But हम बहुत कम ऑयल में बनाने वाले हैं आज. And for taste I am going to add jaggery. Jaggery taste भी देगा, and ये जो मसाला है इसे बाइंड करके भी रखता है,
कलर भी देता है, स्वाद तो देता ही है, एंड इट balances all the sharpness which is coming from the garlic and chili as well. And to this, to bind everything together, a very little bit of बेसन, बहुत थोड़ा सा बेसन डालना है ताकि सब चीज़ें, सारा जो मसाला है वो अच्छे से बाइंड करे, और हम जब स्टफ़ करेंगे तो मसाला जो कोकोनट है वो बाहर नहीं आएगा ब्रिंजल या पटेटो में से. Now that's it, give it a nice mix, and as you can see the frozen packet which जो मैंने आपको पहले दिखाया था, it has now come back to room temperature. और ये देखिए, ये सूरती पापड़ी है, आप बीन्स देख सकते हैं, फ्रेश तुअर है, यैम है. इन सब चीज़ों को मैं सेपरेट नहीं करने वाली हूँ, ऐसे ही हम इसे यूज़ करेंगे. अगर आपको पता है, आप जब फ्रेश वेजिटेबल्स के साथ बनाते हैं तो जो बीन्स और पापड़ी होती है उसे हम सेपरेटली सॉल्ट और सोडा डाल के थोड़ी देर रख देते हैं ताकि वो जल्दी कुक हो सके. बट फ्रोज़न पैकेट का एक प्लस पॉइंट ये है कि बिकॉज इट इज़ फ्रोज़न, इट इज़ ऑलरेडी वेरी सॉफ्ट एंड सॉगी, सो इट डजंट नीड टाइम टू कुक. बस अब हम इसमें सिर्फ़ और सिर्फ इसमें सॉल्ट डालने वाले हैं, और ये सब वेजिटेबल्स हम डायरेक्टली ऐसे ही यूज़ करेंगे. सो अ वेरी लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट एंड वेरी लिटिल बिट ऑफ मसाला, इसको हम मिक्स करके रख देंगे इसमें वेजिटेबल्स में. बस सिंपल, और कुछ नहीं करना है. तो ये देखिए, बहुत थोड़ा सा मैं सॉल्ट डाल रही हूँ, वेरी लिटिल बिट, जस्ट टू मेक श्योर कि ब्लैंड टेस्ट नहीं आएगा इसका. एंड वेरी लिटिल बिट ऑफ मसाला, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि वंस वी ऐड द वेजिटेबल्स टू द कुकर और कढ़ाई, उसके बाद अगर आप उसको सीज़न करते हैं सॉल्ट से या मसाले से तो मिक्स नहीं हो पाता है, और ये सारी पापड़ी और जो भी चीज़ें हैं ये सब ब्लैंड टेस्ट करेंगी, बहुत ही फीका टेस्ट आएगा क्योंकि मसाला मिक्स नहीं हो पाएगा, इसलिए. दैट्स इट. अब हम इसमें जो बचा हुआ मसाला है वो हम स्टफ़ करेंगे बैंगन और आलू में. तो मैंने बैंगन को इस तरह से 4 स्लिट करके रख दिया था, कट करके रख दिया था. आलू को आप चाहे तो आप बेबी पटेटोज़ यूज़ कर सकते हैं, या एकदम मीडियम साइज़ के पटेटो ले लें, सो दैट ये जब कुक होंगे तो मैश नहीं हो जाते हैं वो. तो ना बहुत ही बड़ा ना बहुत छोटा आलू लेना है आपको, और उसको भी इस तरह से 4 स्लिट कर लेंगे, सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू स्टफ़ द मसाला. दैट्स इट. सारे मसाले सारे आलू और बैंगन को आपको स्टफ़ कर लेना है एक एक करके. इसको पानी में भिगो कर रखें ताकि जो बैंगन है वो काले नहीं पड़ेंगे. ये सारे वेजिटेबल्स यहाँ यूके में मुझे जो मार्केट में मिले हैं मैंने वो ही यूज़ किए हैं. अब बहुत डिफ़िकल्ट है इस टाइम पे फ्रेश वेजिटेबल्स मिलना, पर जो मिलता है उसमें बनाना इज़ द ट्रिक. एंड वो चीज़ आपके प्लेट में आ रही है, इससे ज़्यादा मैं थैंकफुल भगवान को नहीं हो सकती हूँ, बिकॉज इस टाइम पे यू रियलाइज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड एंड फार्मर्स एज वेल, हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ फॉर अस टू गेट द वेजिटेबल्स, जो कि हमें पहले इतने आसानी से मिल जाया करती थी, मगर अभी ऐसा टाइम है कि इतना डिफ़िकल्ट हो गया. इसलिए जो मिल रहा है मैं उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ. और यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने ब्रिंजल को स्टफ़ कर दिया है. सिमिलरली आप सारे ब्रिंजल और सारे पटेटो को स्टफ़ कर लेंगे. और मैं यहाँ एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि ये जो वीडियो है, आई हैड नॉट प्लान्ड टू शूट दिस, तो ये बहुत एक इंस्टेंट वीडियो बनाया मैंने जस्ट टू शेयर विथ यू ऑल कि फ्रोज़न वेजिटेबल से उंधियो कैसे बन सकता है, और फ्रोज़न वेजिटेबल्स कैसे दिखते हैं, या उसमें क्या क्या होता है, एंड हाउ टू कुक इट, और इसका टेस्ट कैसा है. ये भी मैं, इट्स अ काइंड ऑफ अ रिव्यू वीडियो, सो आई हैड नॉट प्लान्ड इट. तो अगर वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आई अपोलोजाइज़ फॉर इट अभी से ही. आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई प्रॉमिस यू जब भी मेरे को टाइम मिलेगा नेक्स्ट, वेन एवर आई एम गोइंग टू कुक द उंधियो, आई विल शेयर अ गुड रेसिपी वीडियो विथ यू ऑल. तो बस अब मैंने यहाँ आलू भी स्टफ़ कर दिया. इसी तरह से सब कुछ आप सारे आलू और सारे बैंगन स्टफ़ कर लेंगे. थोड़ा मसाला आपको बचा कर रखना है क्योंकि हम उंधियो में भी लास्ट में डालेंगे, और थोड़ा सा हमें बनाना में भी स्टफ़ करना है. दिस मच मसाला इज़ फाइन फॉर एंटायर प्रोसेस. यहाँ मेथी मुठिया की प्रिपरेशन कर लेते हैं. यहाँ मैंने फ्रेश मेथी ले ली, उसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया है, रेड चिली एंड धनिया जीरा पाउडर वेरी लिटिल बिट, एंड अ पिंच ऑफ हल्दी. ठीक है, एंड
इसको अब हम अच्छे से, अब इसमें हम डालेंगे बेसन सबसे पहले, और थोड़ा सा आप आटा डाल दें, थोड़ा बेसन और थोड़ा आटा बिल्कुल इक्वल प्रोपोर्शन में। और अब डालेंगे ऑयल। ऑयल अच्छे से डालना है ताकि खस्ता बनेगी। जब ये ऊंधियों में जाता है तो ये सारा ऊंधियों का जो फ्लेवर है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए अच्छे से ऑयल डाल देंगे। अब मैंने डाल दिया इसमें हींग। ये बेसन डाला है तो हींग या अजवाइन तो मैंडेटरी ही होता है, बिकॉज इट इज़ अ कॉम्बिनेशन। और बेसन का जो हैवीनेस है उसको हेल्प करता है हमें डाइजेस्ट करने में, तो हींग तो डालना बनता ही है। बस अब इसे अच्छे से इसका स्टिफ डो बना लेना है और उसको रेस्ट करने देंगे 10 मिनट। तब तक हम इस ऊंधियों के बघार की तैयारी करते हैं। तो यहाँ मैंने ग्राउंडनट ऑयल ले लिया है, मूंगफली का तेल, और इसमें मैंने डाला है द हार्ट ऑफ ऊंधियो, दैट इज़ अजवाइन। अच्छे से आपको 1 टीस्पून अराउंड अजवाइन डालनी है सबसे पहले। और अब मैं उसमें डाल दूँगी थोड़ी सी राई, मस्टर्ड सीड्स। मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग ग्राउंडनट ऑयल फॉर द बेस्ट एंड द बेटर टेस्ट, ओके। क्योंकि अगर आप सनफ्लावर ऑयल लेते हैं तो इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा जो एक्चुअल ऊंधियों का आता है। वो ऑयल से भी देखो, टेस्ट, फ्लेवर, ये सब ऑयल का भी खेल होता है। तो मेक श्योर दैट यू यूज़ ग्राउंडनट ऑयल। यहाँ मैंने डाल दिया पिंच ऑफ हींग, क्योंकि हींग जैसे मैंने कहा ये डाइजेशन के लिए हम डालते हैं, ये काफ़ी हैवी डिश है इसलिए हींग डालना बहुत ज़रूरी है। एंड नाउ आई विल जस्ट ड्रॉप इन द ब्रिंजल्स एंड पटेटोज़, और इसे हाई फ्लेम पे हम आलू और बैंगन को 2 मिनट के लिए सिर्फ सॉटे करेंगे। ज़्यादा ही नहीं, आपको इस तरह से मिक्स नहीं करना है कि अदरवाइज़ जो मसाला है वो बाहर निकल जाएगा। बहुत थोड़ा सिंपली ऐसे आंच पे इसको रखे रहने दें, और अगर आपको लगे तो इसको थोड़ा सा बीच बीच में स्टर करते रहें। 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसे सॉटे करेंगे हम। एंड दैट्स इट। ये देखिए मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लेती हूँ। 2 मिनट के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ। बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारी तरह से ये सिक जाएगा ऑयल में अच्छे से एक बार। एंड दैट्स इट। ये मैं कुकर में बना रही हूँ, आप चाहे तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो वो फ्रोज़न वेजिटेबल्स जो थी हमारी, बीन्स, यैम, सब कुछ, इसमें जो मसाला लगाया हुआ था वो हम इसके ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। इन्हें मिक्स नहीं करना है क्योंकि आलू बैंगन को कुक करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू दिस, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी फ्रोज़न, इट इज़ ऑलरेडी सॉफ्ट एंड सॉगी, तो इसे कुक करने में कम टाइम लगेगा। इसलिए इसे ऊपर सिर्फ बिछा कर रख देना इस तरह से। कवर इट विथ लिड एंड let it steam for like 10 minutes on a low flame. That is the key. अब आप इसको बिल्कुल धीमे आंच पे रख देंगे तो ये जो भाप बनेगी ये भाप में ही पक जाएगा और इसे ज़्यादा ऑयल नहीं लगेगा। जब तक ये कुक हो रहा है, लेट्स वर्क ऑन द मेथी मुठियास। तो जो मेथी मुठिया का आटा होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, भजिया जैसा नहीं होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए। सख्त हो जाएगा तो वो बहुत ही कड़क लगेगा और अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा ऊंधियों का फ्लेवर। बस अब इसे अच्छे से रोल कर लेंगे। आप 2 तरीके से इसे बना सकते हैं, या तो ये शेप जो सिलेंड्रिकल है, और एल्स गोल शेप में आप बना सकते हैं इस तरह से। ठीक है। अब मेथी मुठिया भी सर्व करने का 2 तरीका है, इधर यू कैन स्टीम इट और यू कैन डीप फ्राई इट। तो ट्रेडिशनल ऊंधियो रेसिपी जो है इट हैज़ डीप फ्राइड मुठियाज इन इट, तो हम इसे डीप फ्राई ही करने वाले हैं। बट इफ़ यू वांट टू गो लो ऑन द ऑयल देन यू कैन स्टीम इट। तो ये देखिए मुठिया रेडी हो गए हैं। ये जो 2 हैं वो फ्रोज़न थे और बाकी फ्रेश है। अब इन्हें फ्राई कर लेंगे। मीडियम गर्म होना चाहिए, ऑयल का टेम्परेचर मीडियम होना चाहिए, एकदम बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं। अब हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक ये डार्क कलर नहीं आ जाए। इसका बहुत अच्छे से फ्राई करना है, अंदर से ये कुरकुरे होने चाहिए। और यहाँ मैंने एक तरह जो है, जब 10 मिनट होने में आ जाएंगे, इस तरह से मैंने बनाना स्टफ़ कर दिया। आप चाहे तो बहुत राइप्ड बनाना भी ले सकते हैं, बट मैंने इधर वो एक्सेस राइप्ड बनानास नहीं लिए। आप चाहे तो रॉ बनाना भी यूज़ कर सकते हैं। 10 मिनट बाद ये देखिए ऊंधिया अपना ऑलमोस्ट रेडी है। एंड अगेन सॉरी फॉर द वीडियो, जैसे मैंने कहा आई हैड नॉट प्लान टू मेक इट, सो थोड़ा इस तरह से मैंने शूट किया है। या ऊंधियों को मैंने सिर्फ मिक्स कर लिया और उसके ऊपर अब मैंने ये मेथी मुठिया जो फ्राई करके डाले हैं, बनाए हैं, वो डाल रही हूँ, और स्टफ्ड बनानास रख देंगे इस तरह से।
तो ये ऊंधियो ऑलमोस्ट रेडी है। बनाना को स्टीम होने के लिए सिर्फ 3 से 4 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं। और मेथी मुठिया तो ऑलरेडी फ्राइड है, ताकि ऑलरेडी कुकड है, इससे ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं। इसके ऊपर बस आप चाहे तो थोड़ा सा धनिया, हरा लहसुन डाल के इसे 5 मिनट स्टीम कर दें, हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे। 5 मिनट स्टीम करने के बाद आप इसको चेक कर ले, ये देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं बनाना एकदम प्रॉपरली कुक हुआ है। अगर ओवर कुक करते हैं तो सारा मसाला बाहर आ जाता है, बनाना ऑलमोस्ट स्मैश हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो हमारा ऊंधियो रेडी है। इसे गर्मा गर्म पूरी के साथ सर्व करिएगा या गर्मा गर्म फुल्का रोटी के साथ। इस उत्तरायण आप किसी भी तरह की दुनिया के किसी भी कोने में हैं तो भी आप ऊंधियो खा सकते हैं फ्रोज़न वेजिटेबल्स के साथ। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी।